Let me show you the output also. This screen is again visible to all of you. And now this is the output. Okay. This is the text generated by this program. And let me copy this text and paste it in your screen. Copy is not available, I think. Let us see if it is available. Then definitely I will. Okay, it is not available. Okay, so this is the program in left hand side and this is the output. What is written on first day of Christmas, on second day of Christmas, on third day of Christmas, on fourth day of Christmas, and likewise. And here you won't be able to find any Christmas word is. Okay, no Christmas word is written. Sir, I don't know why these calls are coming. Okay, so this is about the program, and let me show you one more program. Okay, sometimes in your mind there is a question that how do we write a program which accepts the formatted input. So this is a program, simple program for entering data as, let me show you the output and then you will be able to get the detail. Okay, but it is not for practice, this is for clearing your doubts only. Okay, suppose I am writing a date 23rd of October or 23rd of September 2020. Okay, this is the date. So whether this date is enterable or not, so this date is enterable and this is extracted as day is 23rd, month is 9 and year is 2020. I had put 09 but it has taken 9. Okay, so let us see, is this screen, both the screens are visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so initially I had taken, and yes, initially I had taken what I had taken. I had taken integer ddmmyy. So you know the purpose of this. This is the separator. Okay, separator means it is a character which is used to identify the separator. So I am entering the separator, maybe 19 minus 10 minus 2020 or 19 minus 19 slash 10 slash 2020. So it will automatically recognize the date. So I had asked the user that please enter the date. So here person D is okay. No problem. This person D has no problem. But what is the meaning of this? Okay. So the meaning of this is the separator may be, if I am entering any data, जो भी डेटा मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, if it is minus or slash, okay, it will be treated as separator. Clear है? Yes or no? Sir, can you explain it again? Yes. आप डेट एंटर कर रहे हो, इंटीजर में डेट एंटर होगी क्या? Are you able to enter date No, in sir. it? No, it is not possible. But if you want to take input as date from user, then what is the way? So this is the way. Okay. If you are simple writing %d, 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 fine. Let me hide this statement. Let me hide this statement. And I am writing your own language statement. Okay. Whatever we have seen. So this is commented. This is commented means it will not read and forget about it. And let us write one special code, that is %d followed by %d followed by %d. It was our traditional approach. Clear? It was our traditional approach where we are not going to use any separator or anything, and forget about this separator also because we are not using this now.
So whenever I'm entering, I'm running this program, I'm going to run this program. Okay, I started running this program. This program is like this. I had entered 23rd of September 2020. See, what is the output? Output is 23rd 16:0. You are expecting this kind of output? No, sir. No, nobody is interested to read such kind of output. Then how do we tell the system that whenever user enters in natural way, then it will read the desired things? Okay. So what is slash? What is forward slash? Forward slash is a separator. What is minus 19 hyphen 10 hyphen 2020? You know that this is date. Whatever I am showing here, it is date, but computer won't understand date. Okay, so how do I make the program understandable to computer that first integer is integer and which belongs to day, second is second belongs to month, and third belongs to year. Fine. So I need to put separators, and I let me call that, and just forget about this, that this is written as character separator 2. It will accept two kind of character. That's why I had put characters over here. Okay, so how do I put the characters? This is very simple programming. You just need to put percent followed by two square bracket. Inside that, forward slash and minus will be written. Okay, it means either forward slash or minus will be used in between dd and and in between and yy, again there will be a separator, maybe this or maybe this. So this will be the entire program which is written. And see, what is this percent, this extra percent? This is a separator. Okay, I had already put the value of separator. That's why no need to put and or ampersand mark. Similarly, in between this two, I need to put SEP. Okay, so DD minus minus YY. Yeah, DD slash slash YY. Okay, so this is the way you can use. Fine. Any doubt? Just see the program and try to elaborate. So have you received the
So, are you able to understand this program now completely? Yes, sir. Okay, so let me start. This is with this we finished our basics of computer programming. Okay, scanf, percentf, etc. Let me start something new, and we will start with decisions. Okay, so there are several programs. I will show you the book and just try to write all the program. Okay, let me show you the book. I think you are having the books, na? Yes, sir. You have shared 2 PDF about C programming. Yes, I had shared 2 PDF about 2 programming. Hmm. ओके, सो एक मैंने आप लोगों को वेणुगोपाल का बताया है ना। वेणुगोपाल के अलावा दूसरी जो बाकी और भी कई बुक है, तो आप वेणुगोपाल की बुक डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। कहाँ से ओपन कर सकते हो? दिस स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। सो जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम्स दिखाई देंगे। तो मैं एक एक प्रोग्राम आपके डिस्कस कर लेता हूँ। आपको जहां पर भी डाउट हो आप पूछ लेना। दिस स्क्रीन इज विजिबल ना? यस और नो? Yes, sir. वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। Yes, sir. Okay, Yes, sir. so let me show you, because already we have late, and if you have any doubt, I will show you all the doubts. Okay, so in variable and expression, these are the variable and expressions already completed. Okay, so here some programs are written. This is your initial one more program is given, that how do you scan app? Okay, how do you scan app? So what this program does, just try to understand. uh, just plus and plus. So this program is visible to you. And now floating point years and second. Input your age in years. You enter your age in years like 15.5, 15.6, likewise, then it will calculate number of seconds. So how do it will calculate the number of seconds? So this is years multiplied by 65 multiplied by 24 multiplied by 60 multiplied by 60. So you have lived for this much second. So this program's logic is clearly understandable to you. Yes, sir. sir. Okay, now characters and character strings. So suppose this is one program, character assignment operator. So uh, till now we have not used any character. In previous program we have used but little bit, and I had never uh, uh, told you that please don't use. I had told you that please don't use this type of programming for this purpose only. Okay, मतलब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आप अभी इसको ना करें. Whenever it is required in future, we will definitely go for that. Okay, so similarly here character C and C equals to hash is assigned. Print this is hash symbol. तो आप %C से इसको प्रिंट कर सकते हैं. तो ये कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है नहीं, इसको आप इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको एक एक प्रोग्राम में जाना है, एक एक प्रोग्राम में जाना है, और एक एक प्रोग्राम में जाने के बाद आपको ये चेक करना है कि किस तरह से ये रन हो रहा है. ओके, in this program I am writing one more code for ASCII code.
So I think this is visible to all of you. Let me show you one program for how to write ASCII code and how to see the equivalent value. Okay, so because I had quoted several times that ASCII code exists. So what do you mean by this ASCII code? So there is one value integer and only one printf is required, integer number. Okay, integer and character. If you are not writing character, there is no harm. So I think don't go for character. You just print that enter any number between 0 to 255. ओके, और अब आप इसको करेंगे स्कैन ऐप। ये प्रोग्राम क्या बताएगा आपको बताता हूं मैं। परसेंटेज स्कैन करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन एन, ओके, एंड देन ASCII equivalent, ASCII value, ASCII of above number is %C. Now you need to show the character because ASCII is the character and what is the value n. Suppose अब आप देखिए ये जो ASCII कैरेक्टर के हमारे पास पूरे सेट होते हैं, ASCII कैरेक्टर के पूरे सेट होते हैं, आपने पिछली क्लास में भी देखा है। तो इन दैट क्लास आई हैड शोन यू what are the different values of ASCII numbers. Okay, so this is the table and in this table it is written this is the value. Okay, now suppose you are running this program. इस प्रोग्राम में आपने किया क्या है? This is your program which takes input as number and then it will display equivalent character in ASCII table. तो ये आपके पीछे ASCII table दिख रहा है ना? इसमें से हम कोई भी कैरेक्टर एक चूज कर लेते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेशन का पूरा बड़ा So this is the symbol for integration and differentiation, or you can pick one more symbol, that is your omega. Okay, so you can pick omega also. So let me show you what is the equivalent value of omega. Anyone? $234. Okay, so let us run this program, and after running this program, if you enter 234, so it will display omega. So is it
clearly visible to all of you that it will displaying omega? Yes, sir. Okay, so this is the program for writing character codes in ASCII. Okay, now let me show you some other program. So with this, I think it is sufficient for you, and just try to solve the problems given in this book. Okay, and left, suppose if you are, because this is basic data type, so I need to write basic data type also. So if you want to enter certain string, fine. So let me show you one more code for string also, because this is very helpful for you while writing string related question. If you want to display like in get ch or put ch, so similar kind of program you can write here. Here I am using one array of 20 character. Okay, and instead of writing it may be character, and just printf enter any number, enter any string. Okay, enter any string, and then it will be scanned. So it is not able to scan actually, because it will scan a single character. So how do I scan the things here? What is the way? They have not shown any way. They had just written any string. So let me show the same example also. Not going to scan the string, just character and 20 equals to, suppose this is the string MET University Rajasthan. Okay, and if you want to print this, how do you print? So this you need to write, because this is not character, this is one string. Even you can enter the string also. So this is your string, and what string you want to print, because this is a string. Okay, now let us see the output of this program. Whatever you have entered here, whatever you have written here, string, basic string, basic string. So this will echo the program. A sky of above number is MET University Rajasthan. Why this Raj is coming and Rajasthan is not coming? Any guesses? सर वो 20 की लिमिट डाली है शायद Sir, इसलिए। yes, it is beyond 200. Good, great, very good. So this is how you can write, and ये string किस तरह से स्टोर होती है आप देखिए, जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर के इक्विवेलेंट जो नंबर है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को नंबर सिस्टम अच्छे से समझना है, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। हर एक चीज कोड में लिखी हुई है। फाइन, नाउ कम टू क्वालिफायर्स। तो क्वालिफायर्स मैंने बता ही दिया था, साइज क्वालिफायर है, और इसके अलावा साइज ऑफ ऑपरेटर है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस को आपको कैसे देखना है। इंटीजर कितने साइज का होता है आपको ये बता चुका हूँ प्रोग्राम में। साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट। सेम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैंने कभी साइज ऑफ को यूज किया है और बताया है कि भाई ऐसा करने से आपको पता लग जाएगा कि इंटीजर का साइज कितना है। नहीं बताया हूँ, हाँ या नहीं बोलो ना, याद मत करो। शायद सर नहीं बताया। शायद नहीं बताया, ओके। देखिए प्रोग्राम में क्या था, जैसे आपको पता करना है कि किसी डेटा टाइप का साइज कितना है ना। आप श्योर नहीं हो, बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, तो आपको करना सिर्फ इतना रहता है कि आप या तो लिख लो इंटीजर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप महिमा भी लिखोगे तो वो आएगा, इंटीजर साइज इन बाइट। ओके,
इक्वल्स टू %d। अब आप यहाँ पर लिखिए साइज ऑफ, ओके, ये साइज ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है, एंड ब्रैकेट के अंदर आप डाल दीजिए इंटीजर। एक फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है, जब आप इसको रन करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखाता हूँ। जैसे ये इंटीजर का हो गया है ना, सिमिलरली लॉन्ग इंटीजर आपको चाहिए, लॉन्ग इंटीजर का साइज क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए साइज ऑफ इंटीजर साइज इन बाइट, लॉन्ग इंटीजर साइज इन बाइट, ओके। सिमिलरली इंटीजर साइज इन बाइट, और मैंने लिख दिया 1 डॉट, फिर यहाँ लिखा 1 डॉट। अब मैंने लॉन्ग इंटीजर लिखा, इसको रन करवा के देखते हैं, फिर बाकी का मैं बताऊंगा। फाइन, ओके सर। ये देखिए इंटीजर का साइज भी 4 बाइट है और लॉन्ग इंटीजर का साइज भी कितना है, 4 बाइट है, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट इंटीजर का दिखाता हूँ। शॉर्ट इंटीजर आपको सिर्फ लिखना इतना सा है, यहाँ पर आप लिखिए शॉर्ट, SHORT, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि किसका साइज देख रहे हो। और इसके बाद आपको मान लो कैरेक्टर का साइज पता करना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी डेटा टाइप नहीं लेना पड़ रहा है, डायरेक्ट ये इनबिल्ट फंक्शन है ताकि आपके डाउट्स को वो क्लियर कर सके, ठीक है। कैरेक्टर के लिए भी %d लिया है, क्योंकि ये जो साइज ऑफ है ये साइज रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। सिमिलरली यदि आप फ्लोट लेते हैं, फ्लोट, तो फ्लोट के लिए क्या रिटर्न करेगा, FLOAT, ओके। फ्लोट हो गया, और ये शॉर्ट इंटीजर की जगह पे आ जाएगा फ्लोट, FLOAT। फाइन। फ्लोट के अलावा क्या है हमारे पास, और कोई है? कोई और डेटा? लॉन्ग डबल प्रिसीजन आपको लिखना है, डबल, DOUBLE, ये सब डेटा टाइप है, ओके। अब फ्लोट की जगह पे आप लिख दीजिए डबल, है ना, DOUBLE। ये जो 111 लिखा आ रहा है ना, ये मैं एक्चुअली नंबर लिखना चाह रहा था 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 111 ही लिखा गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको रन करके देखिए, एंड देन व्हाट इज द आंसर, इंटीजर साइज इन बाइट इज 1, इंटीजर साइज इन बाइट इज 4। तो ये मैंने बहुत गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है? कैरेक्टर, एक्चुअली मुझे यहाँ पर कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर, फाइन, जो आप लिखते हो वैसे का वैसा ही आता है। यहाँ पर देखिए, अब कैरेक्टर साइज इज 1 बाइट, इंटीजर साइज इज 4 बाइट, लॉन्ग इंटीजर इज 4 बाइट, शॉर्ट इंटीजर इज 2 बाइट, फ्लोट इज 4 बाइट, डबल इज 8 बाइट, ओके। अब लॉन्ग डबल लिखिए, लॉन्ग डबल कितने साइज का होगा, देखते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है आपको पता है? आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की थी पिछली नंबर सिस्टम की, सर जो मैंने सर डे बिफोर यस्टरडे ली थी? किसी को नहीं पता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम वो मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बस यहाँ पर अब आपको साइज दिखा देता हूँ। ये साइजेस दिख रहे हैं, है ना, एक सेकंड। Lot interruptions are there, okay, so this is the size, okay। यहाँ आपको कैरेक्टर का साइज दिखाई दे रहा है बाइट में 1, क्लियर है? यस और नो? यस सर, यस सर। 8 बाइट का आपका आंसर आना चाहिए, है ना।
8 बाइट का। मैं एक्सेल शीट की हेल्प से आपको बताऊंगा कोई भी नंबर। हम एक काम करते हैं, शॉर्ट इंटीजर 16 बिट का लिखा है ना, तो हम यहाँ से जीरो नहीं, पहली बिट हमारी क्या होगी 15, 14, 13, ये सब लिख के हम इसको 0 तक लाते हैं। ये 0 तक पहुंच गया, ये टोटल 16 बिट हो गए। एग्री और नॉट? Yes, मैं sir. आपको जो मैथमेटिक्स करके दिखाऊंगा वो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ ये मैंने ऐड कर दिया कॉलम, फाइन। अब आप कोई भी नंबर यूज करते हो, कोई भी नंबर, हम शॉर्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। शॉर्ट इंटीजर का सबसे मैक्सिमम साइज क्या है? 16 बिट होने की वजह से 2 टू दी पावर 16। यदि मैं इक्वल्स टू लिखता हूँ और पावर लिखता हूँ और इसके बाद में देता हूँ 2 टू दी पावर 16, तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये इसको पता नहीं लग पाया, शायद पावर फंक्शन गलत मैंने लिख दिया है ना। तो लेट मी राइट पावर नाउ, दिस इज द आंसर, करेक्ट। 2 टू दी पावर 16 इज दिस। बट अब आप सोचिए कि यदि नेगेटिव नंबर लिख रहे हैं तो कैसे लिखोगे? आप इसमें कोई भी नंबर लिखोगे तो कहां से कहां तक लिख सकते हो? 0, सारे के सारे नंबर 0 हो, यस और नो, और सारे के सारे नंबर 1 हो, क्योंकि बिट का मतलब क्या होता है? 0 या 1। एग्री और नॉट? Yes, sir. क्लियर है आप लोगों को? ये मैंने 2 टू दी पावर 16 की वैल्यू निकाली, ये भी आप लोगों को क्लियर है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई नंबर पॉजिटिव है और कोई नंबर नेगेटिव है, तो आपको आपकी ये नंबर 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव होंगे, यस और नो? यस सर। एग्री और नॉट? तो ये जो नंबर है 16 बिट का, ये 16 बिट का नंबर अब क्या बन जाएगा? ये this divided by 2, only this many numbers, these many numbers are there, okay. And let us check what is the value of this number, any number. Okay, suppose this is a number written in, and let me start with the positive number only, okay. So what is the value of this number? तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 32768। मैं केवल समझा रहा हूं, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या रहता है? 2 टू दी पावर में एक्सपेंशन करना रहता है ना। एग्री और नॉट? Yes, sir. तो मैं यहाँ पर 2 टू दी पावर के टर्म्स में एक्सपेंशन कर रहा हूँ। ऊपर पावर लिखी है 14, है ना, तो मैं फिर 14 लिखूंगा, 2 टू दी पावर 14। तो यहाँ पर मैंने पावर फंक्शन रखा, पावर फंक्शन पावर 2 टू दी पावर 14, ओके। और इसके बाद मैंने जो अगला फंक्शन लिया, इक्वल्स टू लिखना था। ये एक्सेल शीट है, मैं केवल मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, जो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो वो मैं यहाँ पर बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ बस, ओके। देन this is not 2 to the power 14, this is 2 to the power 30, fine. Now likewise मुझे ये 1 तक ले जाएगा, पर ये नहीं ले जा पा रहा है, कोई बात नहीं, मुझे एक एक मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? This will be 12, fine, and similarly this will be, I think अब तो आना चाहिए, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 12 के बाद आएगा 11। अभी आप लोगों की क्लास में अभी 15 मिनट है, आप इस अरिथमेटिक को ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आएगा तो। 10, अब मुझे याद हो गया, 1024, इसके बाद आएगा 512, इसके बाद आएगा 256, इसके बाद आएगा 128, इसके बाद आएगा 64, देन 32, देन 16, देन 8, 4, 3, 2 एंड 1। आप देख रहे हैं बाइनरी पावर में मैंने एक्सपेंड कर दिया है पूरे नंबर, कहीं गड़बड़ है क्या? 8, 4, 2 और 1, yes. ये जो लास्ट वाला है मैंने केवल एडिशन के लिए रखा है, ये वाले कॉलम की वैसे कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है। अब आप कोई एक नंबर लीजिए, कोई भी एक नंबर लीजिए। तो मैंने ये नंबर लिया हुआ है, ये नंबर, इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने पर ये पूरा नंबर यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा है, 632,767। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये नंबर से एक नंबर कम आएगा। यस और नो? ये ऐड किया है, सारे का एडिशन का रिजल्ट निकला है। ठीक है। अब मैं ये दोनों नंबर को ऐड करता हूँ, बाइनरी में ऐड करता हूँ। ये पूरा की पूरा नंबर दिया हुआ है और मैंने इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और सिमिलर नंबर मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आप इसको ऐड कीजिए। 1+1 कितना होता है? 10 होता है। कैरी का 1 यहाँ पर जाएगा। यस और नो? एक जन प्रॉम्प्ट करते जाइए। Yes, sir. ओके। देन Yes, वन sir. प्लस वन प्लस वन कितना होता है? 11। 11 का 1 और ये 1 यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है। फिर से ये 1 आया और ये 1 यहाँ पहुंचेगा। फिर से ये 1 आया, 11 का 1 यहाँ पहुंचेगा और 1 यहाँ आएगा। फिर 11 हो गया, इसका 1 यहाँ पहुंच के फिर यहाँ आ गया। और ये प्रोसेस हमारी कब तक चलते रहेगी? जब तक कि ये नंबर ना आ जाए। यहाँ पर भी 1 कैरी का बचेगा लास्ट में भी, है ना? ये लास्ट में भी कैरी का 1 बचेगा और ये यहाँ पर 1 आ गया और इसके बाद कैरी का 1 यहाँ पर भी चले गया और ये आया 1। सी, अब मैं आपको एक आंसर दिखा रहा हूँ, है ना? यही सेम रिजल्ट है। जब हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो सबसे लास्ट वाली पावर ना इसकी डबल होती है, इसकी डबल, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है। माइनस पावर पावर और इसके बाद मैंने लिखा 2 टू दी पावर 16। ओके, not 16, it is 15 because 15th position is there. Yes. अब मैं इनको आपस में ऐड करता हूँ, इन सारे नंबर को आपस में ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है मेरा? देखो, 0 या -1 कुछ आएगा। -1 आया। यस और नो? Yes, sir. आ गया Yes, sir. -1। अब आपको यही चीज मैं प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। ठीक है। मतलब ये जो -1 आ रहा है किस तरह से आ रहा है मैं आपको प्रोग्राम में करके दिखा रहा हूँ। Ctrl+C और हमने एक नया प्रोग्राम बना लिया और ये प्रोग्राम बनाया और इसमें मैंने कुछ नहीं, केवल printf एक स्टेटमेंट रखा है। बाकी सारी वैल्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ खुद से, है ना? इंटीजर a की वैल्यू मैंने दे दी है और वो इंटीजर कौन सा हमने शॉर्ट रखा है ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। शॉर्ट इंटीजर a इक्वल्स टू क्या रखा था मैंने? 32767। 32767 और यहाँ रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ a+a, सेम रिजल्ट है। a+a मतलब जस्ट मैं इसको डबल कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? माइनस में क्या आएगा? यस, -1। देखिए, साइज इन बाइट लिखा गया क्या? तो जब आप शॉर्ट इंटीजर को देखते हो तो उसको लिखना पड़ता है HD। ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट देखिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू %d और आपने b की भी सेम वैल्यू ले ली। मैं एक काम करता हूँ, दोनों ही अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। ये हो गया b, फाइन। अब आप देखिए आंसर क्या आ रहा है इसका। आंसर देखेंगे तो -1 आएगा। -2, माय गॉड, कैसे आ रहा है -2? हमने दोनों ये सेम नंबर ऐड किए हैं। यस 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 यस, हमने क्या किया है, यहाँ पर 0 लिया था ना,
0 लिया था इसलिए -1 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो एक नंबर कम लिया था हमने, यानी हमने लिया था 32766। अब मुझे आप लोगों को ये बताना है कि ये जो मैंने प्रोग्राम रन करवाया है, जीरोथ पोजीशन पे मैंने 1 रखा, 1 + 1 0 हुआ। अच्छा ठीक है, एकदम सही है। तो यानी ये तो 7 ही रखा था मैंने। ये जो नंबर लिखा है A 32767 लिखा है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है? जल्दी बताइए। यस, आप लोग बताओगे नहीं तो मैं कैसे आगे बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सर ये माइनस कैसे आया? -1 कैसे आया ना, यही मैं आपको बता रहा था। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब आपके पास ये कंटेनर दिया हुआ है, एग्री और नॉट? कितने बिट का कंटेनर दिया हुआ है? ये हमारा नंबर है A। मैं एक बार इंसर्ट कर लूं। इंसर्ट करने के बाद ये मेरा नंबर है A, ये मेरा नंबर है B, और ये है कैरी, और कैरी, और ये है सम, ये है सम। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट वैल्यू है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू करस्पॉन्डिंग पोजीशन की। देखो बेटा, होता ये है कि जब आप नंबर लिखते हो, ये नंबर आपने लिखा, आपको ये नंबर ऐड करना है। ठीक है, ये नंबर ऐड करना है। तो आपने जो नंबर दिया वो क्या दिया हुआ है? 32767। आप कैलकुलेट करके देख लेना आपका रिजल्ट क्या आता है। सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा, यानी 0 फॉलोड बाय 14 नंबर ऑफ वंस। कितने 1? 15 नंबर ऑफ वंस, नॉट 14। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? आप प्रॉम्प्ट करते जाइए मुझे, तभी मैं बताऊंगा। यस और नो? यस देखिए, यस बाइनरी, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। यस और नो? यस Yes, सर। sir. ओके। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो डिवाइड बाई 2 कर करके, तो ये रिजल्ट आता है, ये मान लो आप। बाद में आप वेरिफिकेशन के लिए घर में कर लेना। ठीक है, ये 15 टाइम्स ओके 1 आता है। अब आपके पास 16 बिट का नंबर है। एक नंबर का साइज क्या है? 16 बिट। हम कौन सा नंबर ले रहे हैं यहाँ पर? देखो, इस जगह पे हम ले रहे हैं शॉर्ट इंटीजर। इसका साइज कितना है? साइज कितना है? नो, शॉर्ट इंटीजर का साइज होता है 16 बिट। आपको मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करके दिखा देता हूँ। यही मैं, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था कि आप इसको ध्यान से समझिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये मैंने प्रिंट एफ लिखा है ना, साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर, साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर। साइज कैसे आप पता करोगे? तो एक फंक्शन बना हुआ है, साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर इज %d। %d लिखा, यहाँ पर मैंने दिया साइज ऑफ। साइज ऑफ इज अ फंक्शन, इसके अंदर आप जो भी डेटा टाइप डालेंगे उसका वो साइज निकाल के बताएगा। तो हमारा डेटा टाइप है शॉर्ट इंटीजर। क्लियर? यस और नो? अब मैं इसको रन करवाता हूं, तो ऊपर वाली लाइन पर देखिए कितना लिखा है? 2। 2 मतलब बाइट। कितने बाइट की बात कर रहा है ये? कितना बाइट की बात कर रहा है? 2 बाइट। ओके, ये आप देखिए 2 बाइट कितना आया? 2 बाइट आया। क्लियर और नॉट? यस Yes, सर। sir. एवरीवन क्लियर? 2 बाइट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? यस और नो? यस सर। इसके पास 2 बाइट की बाल्टी है, 2 बाइट की बाल्टी है। अब ये 2 बाइट की बाल्टी हमने बनाई है। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक एक बाइट होता है, और 8 से लेकर 15 तक आप देखोगे दूसरा बाइट होता है। ये बाइट नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब ये 2 बाइट में हम क्या स्टोर कर सकते हैं? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन।
क्या स्टोर कर सकते हैं? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन केवल। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. फिट का मतलब क्या होता है? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन। यस और नो? यस Yes, सर। sir. अब आपके पास 16 कमरे दिए हुए हैं। इन 16 कमरे में से एक कमरा जो है वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखा है। ठीक है, ये कमरा राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखा है। सिमिलरली हमारे पास साइन बिट दिया हुआ है, साइन बिट, ये साइन के लिए रिजर्व रखा है। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए। ये नंबर आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप मेरा किया नो हुआ सर। एडिशन किया हुआ मान रहे हो? करेक्ट मान रहे हो? यस यस और नो? सर। यस है सर। ना? अब यस ऐड सर। करने पर रिजल्ट क्या आया? ये रिजल्ट आया। ऐड करने पर मेरा रिजल्ट ये आया। ठीक है, अब इस रिजल्ट पे आप देखिए कि क्या चीज हो रही है। तो मैंने करस्पॉन्डिंग पावर लिखी है। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, या ये जो प्रेसिडेंट वाला जो प्लेस है, प्रेसिडेंट वाले प्लेस में भी 1 आ गया। ये तो साइन का प्लेस है ना। मैंने नंबर ऐड किया, ऑटोमेटिकली नंबर ऐड होके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, यस करने सर। के बाद साइन का प्लेस है, साइन का प्लेस है, और लास्ट प्लेस में आंसर आ रहा है 0। लास्ट प्लेस में हमारा 0 आ रहा है, तो इस जगह पे मैंने 0 इसकी पावर में लिखा। अब आप देखिए इसका आंसर क्या है? -2 आया। करेक्ट और नॉट? मैं सर आपको दूसरा -2 नंबर, है। ये है ना, ये आंसर है, ये टोटल आंसर। जो इसका एक्चुअल डेसिमल में आंसर कितना आएगा? डेसिमल आंसर इतना आएगा, -2। ठीक है, नीचे डेसिमल इक्विवेलेंट है, तो ये -2 आ रहा है। -1 मैंने गलती से यहाँ पर 1 लिख दिया था, जबकि इस जगह पे तो 0 लिखा है। तो 0 की जगह पे 0 आएगा कि 1 आएगा? 0 आएगा, है ना? अब आप इसको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अभी भी आपको जो भी डाउट है, अब आप पूछो मेरे से। बहुत डाउट है? यस और नो? यस सर, वो नंबर सिस्टम सर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। बेटा इसलिए मैंने बोला था कि मेरे नंबर सिस्टम की क्लास को अच्छे से अटेंड करो। हाँ यस सर की थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर थोड़ा वो प्रैक्टिस होने किया ना, तो फिर सर थोड़ा बीच बीच में से हो गया। अब कल 8 बजे से मेरी क्लास है, ठीक है? सर 8 बजे है आपकी क्लास को? हाँ, कल सुबह 8 बजे। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। मेरी जो एडिशनल क्लासेस चल रही है वो 8 बजे से है कल, नंबर सिस्टम की। और कल मैं यही सारी चीजें साइजेस पे पूरा फोकस करके बताऊंगा। ठीक है? ओके सर। सर कैन यू शेयर द लिंक इन द ग्रुप? हाँ, वो तो मैंने सबको क्या बोला है कि रिवीजन का ग्रुप सबको ज्वाइन करना है। आपने ज्वाइन नहीं किया? सर को कहाँ पे ज्वाइन करना सर? रुको, मैं अभी व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ आपको एक लिंक, है ना? एक सेकेंड रुको ओके बस। सर। ओके सर। रिवीजन, आप लोग किस में हो? इनवाइट ग्रुप लिंक, फाइन। और आप लोग हो 444 वाले नंबर, मेरा 444 वाला नंबर है ना आपके पास? सी सेक्शन, सी सेक्शन नाम है, सेक्शन हाँ सी, यस सर। सेक्शन सी। ये मैंने आपको एक लिंक भेजी है। अच्छा, ये लिंक तो कॉपी नहीं हुई अभी, एक सेकेंड और। इनवाइट ग्रुप वाया लिंक, कॉपी लिंक, एक बार और कॉपी कर दिया मैंने, और इसको सी सेक्शन में आपको भेज दिया है। ठीक है, इसको ज्वाइन करो। कल की क्लास इम्पोर्टेंट है, कल की क्लास अच्छे से ज्वाइन करो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो थैंक यू, है ना? और अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि आप इससे मतलब क्या होता है क्लास में जब हम बताते हैं और कुछ चीजें समझ में आती कुछ नहीं आती, तो इंटरेस्ट जो है हमारा पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है।
तो हमको वो Yes, इंटरेस्ट sir. बना के रखना है ना। अब ये जो नंबर है आप समझ लीजिए कि बिट में लिखे हुए हैं, तो बिट में मैंने यहाँ लिख के बताया कि कंप्यूटर के अंदर कैसे दिखते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर आपने दो नंबर लिए मैक्सिमम, मैंने क्या किया था, इस नंबर को डिवाइड कर दिया था, डिवाइड करके ये मैक्सिमम नंबर बताया था, और ये मैक्सिमम नंबर मैंने यहाँ डाल दिया। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो लास्ट बिट है वो रिजर्व बिट है, ये साइन के लिए। तो इस साइन का मतलब जब हम 2s कॉम्प्लीमेंट में इक्विवेलेंट में निकालते हैं ना, तो जो भी पावर ऊपर लिखी रहती है वही पावर का नंबर यहाँ पर आता है, लेकिन वो नेगेटिव नंबर रहता है। आप कोई सा भी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ जगह पे 0 कर देता हूँ, है ना, ये 0 कर दिया और ये 0 कर दिया। सिमिलरली मैं इस जगह पे 0 कर देता हूँ, इस जगह पे 0 कर देता हूँ और इस जगह पे 0 कर देता हूँ। अब ये क्या नंबर है एग्जैक्टली मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, जिस जगह पे, हाँ अलग से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले हम ये नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये नंबर को मैंने यहाँ लिखा और इसके वेट को यहाँ पर लिख दिया। बस 1 मिनट और लगेगा, आप लोग की नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली है। ये 0 वाली पोजीशन को मैंने हटा दिया। No, sir. Lunch. लंच है ना, तो ठीक है, तो 2 मिनट आप लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो। जिस जिस जगह पे 0 था मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर इसका समेशन निकाला, तो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज ऑल्सो 0, सो ये आ गया 24,540। ये जो ऊपर वाला नंबर है क्या लिखा है, 24,540 लिखा है, 24,540, 540, ठीक है। दूसरा नंबर क्या लिखा है हम ये देखते हैं, यही नंबर लिया था ना मैंने अभी, यहां से पता लग जाएगा नीचे वाले को, हमने यहाँ पर लिया, हाँ यही नंबर लिया था। अब दूसरा नंबर जो है हमारा वो है, ये 0 हो गया, डिलीट कर दो इसको या यहाँ पर 0 लिख दो, 0 वाली जगह पे, ये 0 वाली जगह यहाँ 0 लिख दो, ये 1 वाली जगह है यहाँ पर लिखा है 32, और ये 1 वाली जगह यहाँ पर लिखा है 2, और ये भी 1 वाली जगह है ये 1। ये नंबर है, ये दोनों नंबर है, इनको आप ऐड करो, मैं आपके सामने ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। Ctrl+C और पेस्ट एज टेक्स्ट, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। 1 + 1 0 होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना यहाँ पर, और इसका कैरी का 1 बचा। फिर 1 + 0 + 1 कितना होता है, 0 होता है। मैं इसको Yes, उड़ा, sir. Carry on. इसको उड़ा देता हूँ और फिर से करता हूँ, यस ठीक है। ये कैरी का 1 आ गया था, 1 + 1 0 हो गया, और फिर ये यहाँ पर कैरी का 1 बचा। अब यहाँ 1 आया, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 1, 1 + 1 अगेन दिस इज 0, ओके, और कैरी का फिर से क्या बच गया, 1, यहाँ पर आया 1, और यहाँ पर भी आया 1, 1 + 1 0, और इसके बाद कैरी का 1, 1 + 1 0। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, पर आप थोड़ा सा देख लेना है ना, जो भी कर रहा होगा, क्योंकि मैं यही करते आ रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर इतना मान लो कि ऐड मैं सही कर रहा हूँगा, मेरी गलती भी हो सकती है। क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना, और यहाँ आ गया 1, ठीक है। अब मेरा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, ये आया, ये आंसर आया, और इसको मैंने इसके वेट के फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया नीचे, और ये वाला जो आंसर है इसको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जिन पोजीशंस में 0 है ना, उस जगह पे मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। जिन जिन पोजीशंस पे 0 आ रहा है उस जगह पे मैं 0 कर देता हूँ। हम अपना आंसर मैच करके देखते हैं, कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक की होगी ना तो आंसर थोड़ा सा गलत आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट इसी के बराबर आएगा, ठीक है। अब मैं इसका ऑटो सम कर देता हूँ, ये हो गया। मान लो कि अब यदि यही नंबर लॉन्ग इंटीजर या इंटीजर में लिखता, तो इंटीजर में इसकी क्या वैल्यू आती,
इंटीजर में इसकी जो वैल्यू आती है वो भी मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। ये शॉर्ट इंटीजर में वैल्यू है और इंटीजर की वैल्यू देखो इसकी, ये माइनस मैंने हटा दिया और एंटर कर दिया और इसके बाद ये समेशन में मैंने ला दिया। ठीक है, देखें इसको करके। ये हमारे दो नंबर है 24 तो हमने लिखा 24,540 यहाँ पर 24,540। दूसरा नंबर क्या लिखा 31679 इन दोनों को ऐड करते हैं। दो अलग अलग आंसर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक तो इंटीजर में निकलेगा और एक शॉर्ट इंटीजर में। ऊपर वाला शॉर्ट इंटीजर में है, नीचे वाला इंटीजर में। ठीक है, देखिए पहला आंसर आया है 16,4 कहाँ हमने गलत किया है एक बार चेक करना पड़ेगा। बस 2 मिनट और, थोड़ा सा 2 मिनट और लेट खाना खा लेना है। ये नंबर मैंने सही लिखा है ना, 0 की जगह पे 0। ये पहला नंबर है ए को मैंने उतारा यहाँ, ये ए उतारा और इसके करस्पॉन्डिंग वेट्स उतार दिए। ये करस्पॉन्डिंग वेट्स आ गए। जहां जहां 0 लिखा वहां वहां 0 लिखा, जहां जहां 0 लिखा वहां वहां 0 लिखा। और यहाँ तो 1 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कितना आया आंसर। कहीं और ऐसा तो नहीं छूटा ना जहाँ नीचे 0 लिखा हो, ऊपर 0 लिखा और नीचे 0 ना लिखा हो? नहीं छूटा। और इसको करना पड़ेगा 0 क्योंकि ऊपर 0 है। तो ये एडिशन में परफॉर्म करने पर आ गया आंसर। कितना आया? 24,541 आया। कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं हम? ठीक है, मैं 24,541 24,541 लिखता हूँ। 541 ठीक है। दूसरा नंबर मैंने क्या लिया है, ये है। इसको अब चेक करता हूँ यहाँ पर रख के। तो ये नंबर है, जिस जगह पे 0 है 0 1 1, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 1 आएगा मतलब 8942 चाहिए हमको यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर भी 0 करना है। इस जगह पे 1 1 यानी 32 होगा। इस जगह पे 0 हो जाएगा और इस जगह पे होगा 2 और ये आंसर आ गया 31671। ओके 31671। तो 31679 लिखा था, 1 हो गया। अब इसको ऐड करने पर क्या आंसर आता है? कुछ बहुत फास्ट कर रहा हूं मैं। ओके 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 ओके, हमने इसको तो चेक ही नहीं किया अभी। 1 1 यही रिजल्ट है ना? 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0। एक बार और देख लेता हूँ। 0 हुआ, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 0 आएगा। 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 1। ठीक है, एकदम सही है। कहीं वेट कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं क्या?
कहीं ना कहीं वेट कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक हो रही है ना? अच्छा, ये तो सबसे बड़ी गलती है, a प्लस बी करना। अब सही आंसर आएगा। अब आप देखो, ये देखिए, ये आंसर आया 9324 आया और 56212 आया आंसर। चले गए क्या सब लोग लंच करने? सर कहाँ कंपाइलर में सर? हाँ, ये देखो, ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? एक Yes, मिनट sir. सर। इस ब्लैक स्क्रीन में देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर 9324 आ रहा है जब हमने शॉर्ट को ऐड किया, और इधर ये जो एक्सेल शीट है उस पे भी उतना ही आ रहा है, -9324। यस सर। Sir. दूसरा नंबर 56212 आ रहा है, दूसरा नंबर 56212 आ रहा है जब हम इंटीजर कर रहे हैं। यानी बकेट का साइज हम बढ़ाते हैं तो आंसर बढ़ता है, बकेट का साइज हम कम करते हैं तो आंसर, दो पॉजिटिव नंबर ऐड करने के बाद भी नेगेटिव आंसर आता है। क्लियर है? यस सर। ओके, आप प्रैक्टिस करना। ये जो नीचे नंबर मैंने लिखे हैं ना, ये 2 की पावर के टर्म्स में, ये पूरे 2 की इंक्रीजिंग पावर है, ठीक है? 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, ऐसा लिखा हुआ है ये नंबर। तो आप कल नंबर सिस्टम एक बार ज्वाइन करो, कंफ्यूजन जितने लोगों को है सभी लोग ज्वाइन करो, तो मैं आप लोगों को वहां समझाऊंगा कि कैसे होता है। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। बहुत सिंपल सी चीज है एक्चुअली, कंप्यूटर केवल 0 1 स्टोर कर सकता है, इसलिए ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? ओके सर। So now I am closing and I am taking your attendance. Don't leave the class. Uh, uh, yes, download attendance list. Yes. Now you can leave the class. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, sir.